Hello friends, today we will discuss last part of our unit sale of goods at 1930, and the last topic is unpaid seller and its right. Okay, so after this topic whole unit will get over. Fine. So this is the last topic, then we will move to our next unit, that is negotiable instrument act. So guys, here we need to understand what is unpaid seller. Unpaid seller क्या होता है? So as you can read here, according to section 45A SOGA 1930, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller. जो सेलर है उसको हम अनपेड सेलर कहेंगे कब? नंबर वन, when the whole price of goods has not paid or tendered and seller has an immediate right of action for the price. It means what? जो भी प्राइस है गुड्स की, जो भी प्राइस डिसाइड की गई है बायर और सेलर के बीच में, और सेलर को यहाँ पर 100% प्राइस नहीं मिली है, मतलब 99% प्राइस मिली है और 1% प्राइस उसको नहीं मिली है, तो भी वो अनपेड सेलर माना जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इन शॉर्ट, if seller haven't received the whole price, the total price of goods, then he will be considered as unpaid seller. And point number two, the bills of exchange or other negotiable instrument was given as payment, but same has been dishonored unless this payment was an absolute and not an conditional. It means what? If any negotiable instrument is given in option of payment, for example, it can be bills of exchange और इट कैन बी अ चेक. ठीक है, आपने सेलर को चेक दिया और वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो भी हम उस सेलर को अनपेड सेलर कहेंगे. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. मतलब क्या है कि इफ यू आर पेइंग इन कैश एंड द सेलर हैवंट रिसीव्ड द होल कैश अमाउंट, एंड अनदर पॉइंट, if you have given a check and in that case also the seller have not received the amount of check, then also he will be considered as unpaid seller. Okay, let us go through example. For example, X sold certain goods to Y for rupees 5,000. Y paid rupees 4,000 but fails to pay the balance amount to X. Then X will become unpaid seller. Another example, P sold some goods to R for 6,000 and received a check for full price. On presentment, the check was dishonored by bank. P is an unpaid seller. P ने R को कुछ कोई goods बेचा. The goods was costing 6,000 rupees, and for that he received a check. When he present the check in bank, the check was dishonored. It means check got returned, check got bounced. In that case, P became unpaid seller. Okay, guys. So I hope the concept is clear. In simple language, if I tell you, if any seller doesn't receive amount for the goods he sold from buyer, then such seller will become unpaid seller. Okay, so no need to think much. It's very simple, not that much complicated that you cannot understand. Now the main part is right of an unpaid seller. Unpaid seller को कितने कितने टाइप के राइट मिलते हैं? तो गाइस सबसे पहला यहाँ पर जो राइट है वो दो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है. फर्स्ट, ही गेट राइट अगेंस्ट गुड्स, अनदर ही गेट राइट अगेंस्ट बायर. ओके, एक उसको गुड्स के अगेंस्ट राइट मिलता है और दूसरा राइट उसको बायर के अगेंस्ट मिलता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट राइट अगेंस्ट गुड्स, in that also there are two sub parts. One is property in goods has passed to the buyer and another is property in goods has not passed to the buyer. It means if property is already been passed, गुड्स का जो टाइटल है वो बायर के पास चला गया, तो उसको क्या राइट मिलेंगे? और इन दिस केस प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट पास, मतलब टाइटल जो है वो बायर के पास नहीं है, अभी भी सेलर के पास, तो उसको क्या राइट मिलेगा? सो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, then he get right of lien, stoppage in transit and resale.
And if property and goods has not passed to buyer, then he get rights like withholding delivery, and then lien, and then stoppage in transit, and finally resale. Okay, so if you want to remember, there is only one major change between these two categories. Lien, stoppage in transit, and resale, it is common. It is common in both cases. There is only one change, that is withholding delivery. So while you are remembering this question or while you are remembering this topic, आपको ये चीज आसान हो जाएगी कि लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल तो तीनों में आते हैं. एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा इज विथ होल्डिंग डिलीवरी, विच यू नीड टू रिमेंबर. ओके, कमिंग टू राइट अगेंस्ट बायर, then he gets several rights like suit for price, suit for damages, and suit for interest. Okay, so guys, we will understand each and every right very briefly, so don't worry at all. ठीक है, हम समझेंगे वन बाय वन, सारे राइट समझेंगे. सो यू डोंट वरी एट ऑल. लेट अस स्टार्ट विद द right of an unpaid seller against the goods. Okay, so what was the first right? First right was right of lien. Now what is right of lien? In this right, he has right of lien on goods for price while he is in possession until the payment or tender of price of such goods. The right of lien can be exercised by him in the following cases only. सबसे पहले आप लियन को समझो गाइस. लियन मीन्स व्हाट? लियन मीन्स टू फॉरफिट द गुड्स. गुड्स को जब्त कर लेना, गुड्स को अपने कंट्रोल में ले लेना. ठीक है ना? जब्त कर लेना मतलब फॉरफिट कर लेना, गुड्स को अपने कंट्रोल में कर देना. फाइन. सो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर है कि गुड्स अभी तक सेलर के पास ही है, तो ही वो उसको कंट्रोल कर सकता है. अगर वो सेलर के पास से चले गए हैं तो वो ही कैनॉट कंट्रोल. मतलब इन दिस केस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गुड्स आर समवेयर इन कंट्रोल ऑफ सेलर. इट मीन्स इट इज इन हिज शॉप और इट इज इन हिज गोडाउन. कहीं ना कहीं गुड्स ऐसी जगह पर है जहां पर सेलर अभी भी उसको कंट्रोल कर सकता है. इफ सच सिचुएशन is there, then only he will get right of lien. But he can exercise this right only in these three situations. वो इस राइट का यूज कब कर सकता है? जब ये तीन सिचुएशन हो. पॉइंट नंबर वन, where goods have been sold without any stipulation of credit. It means what? Stipulation means condition. It means from uh, beginning of the transaction only, it was stated that goods will not sold in credit, goods will sold only in cash. ऐसा पहले से ही डिसाइडेड था कि गुड्स कुछ भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में गुड्स को हम क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे. गुड्स विल बी सोल्ड इन कैश एंड buyer haven't paid any amount to seller, then seller can exercise his right of lien. This is condition number one. Condition number two, where goods have been sold on credit but the term of credit has expired. In this condition, goods was sold on credit, but the duration of credit, suppose it was given as 1 month. Within 1 month you have to clear all the amount. But even after 1 month, buyer haven't paid any amount to seller, and seller became unpaid seller. And during this duration, the goods was under control of seller. Then he can exercise his right of lien. I hope the thing is clear to you. And third, where buyer becomes insolvent. It means what? When buyer becomes insolvent means buyer is unable to pay any amount. So in these three situations, by seller gets right of lien. In these three situations, seller get right of lien, or I can say he can use his right of lien. He can exercise his right of lien. Okay, let us move ahead to example. A sold certain goods to B for a price rupees 500 and allowed him to pay the price within 1 month. B became insolvent during this period of credit. A, the unpaid seller can exercise the right of lien. चलो इसमें क्या है?
ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे, प्राइस वॉज अराउंड 500 एंड अलाउड हिम टू पे प्राइस विद इन 1 मंथ। उसको 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर तुझे 500 रुपीज मुझे दे देने हैं। नाउ बी बिकेम इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब ए जो है वो इस गुड्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ओके, क्लियर है? नाउ देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन। जैसे उसको राइट मिलता है ना, वैसे वो अपना ये राइट खो भी सकता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? So there are some situation where he will lose his right of lien. Point number one, let us understand all the situation where he will lose his right of lien. Situation number one, when he delivered the goods to the courier or other bailey for purpose of transmission to buyer without reserving the right of disposal of the goods. It means what? वो इस गुड्स को किसी कैरियर को देता है या किसी बेली को देता है फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू दी बायर। मतलब वो किसी ऐसे इंटरमीडिएट को गुड्स दे रहा है कि वो इंटरमीडिएट ये गुड्स डायरेक्ट जाके किसको देगा? बायर को, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। गाइस, इफ यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ऐसा रूल है कि there is a contract between bailor and bailey in which bailor gives right to bailey for using that goods। ठीक है, ये उसको राइट मिलता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन आपको समझनी है कि सेलर ने किसी बेली को गुड्स दिया है कि ये गुड्स तू जाके बायर को दे के आ, लेकिन उसने उस गुड्स के डिस्पोजल का राइट अपने पास नहीं रखा। उसने वो राइट किसको दे दिया? बेली को ही दे दिया। तो जैसे ही सेलर से वो राइट बेली के पास जाएगा और बेली वो गुड्स जाके बायर को देगा, तो सीधा वो राइट किसके पास चला जाएगा दोस्तों? बायर के पास। अब इन दिस सिचुएशन सेलर विल लूज हिज राइट ऑफ लियन। क्यों? क्योंकि गुड्स का टाइटल किसके पास चला गया? गुड्स भी चले गए सेलर के पास और गुड्स के साथ साथ गुड्स का टाइटल भी चला गया। So this is one situation. Situation number two, where buyer or his agent lawfully obtain possession of goods. Yes, एक बार गुड्स सेलर से बायर के एजेंट के पास चले गए, तो अब समझो वो एजेंट किसका है? बायर का। तो ऑब्वियसली वो किसके बिहाफ काम करेगा? बायर के बिहाफ ही काम करेगा ना। अब गुड्स उसके पास चले गए तो वो थोड़ी तुम्हारी सुनने वाला है, वो तो बायर की ही सुनेगा भाई। So in this case, the seller will lose his right of lien. Situation number 3, where seller has waived the right of lien. सेलर ने सामने से बोल दिया कि मुझे लियन का राइट नहीं चाहिए, मैं वेव करता हूँ। वेव मतलब लेट गो, विदड्रॉ, कि कुछ भी हो मैं राइट ऑफ लियन जो है वो यूज नहीं करूंगा, या मैं जो मेरा राइट है वो मैं यहाँ पर विदड्रॉ कर रहा हूँ, वेव कर रहा हूँ। ठीक है। And fourth point, by estoppel. What do you mean by estoppel? Estoppel means where seller so conduct himself that he leads third party to believe that lien does not exist. Estoppel एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो लॉ में आता है, और इसमें आप सामने वाले को ये भरोसा दिलाते हो कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, और अदर पार्टी विल बिलीव यू एंड परफॉर्म एज पर योर बिलीफ। ठीक है, आपके वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके बातों पे विश्वास करेगा और उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। तो ये जो होता है ना, ये पूरी जो मैंने अभी सिचुएशन आपको समझाई, इसको हम एस्टॉपेल कहते हैं। इट इज ए लीगल लैंग्वेज। फाइन। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल। एग्जाम्पल में ए सोल्ड कार टू बी फॉर ₹1 lakh and delivered the same to railway for purpose of transmission to the buyer. The railway receipt was taken in name of B and sent to B. Now A cannot exercise the right of lien. इसका मतलब क्या है? A ने B को कार बेची 1 लाख में, और वो कार वो किसके थ्रू डिलीवर करवा रहा था? रेलवे के थ्रू। और रेलवे रिसिप्ट में उसने अपना नाम नहीं लिखा,
उसने बी का नाम लिखा है और वो रिसिप्ट भी उसने बी को भेज दी, तो अब यहाँ पर ए कैनॉट हैव राइट ऑफ लियन, वो अब यहाँ पर उसका जो राइट था लियन करने का वो चला गया उसके हाथ से। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ let us understand another right, that is right of stoppage in transit. Guys, this is very interesting. Right of stoppage in transit. Stoppage in transit का मतलब होता है दोस्तों रास्ते में रोकना। जो गुड्स जो भी ट्रक से या किसी और तरीके से जा रहा है तो रास्ते में ही उस गुड्स को रोक देना, उसको हम कहेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब आई कैन से वे, और स्टॉपेज मतलब उसको रोक देना। फाइन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो मीनिंग है वो आपको समझना है। फाइन, नाउ लियन के बाद ये दूसरा राइट मिलता है सेलर को, इसको हम समझेंगे व्हेन द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विथ गुड्स टू करियर एंड बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, he can exercise this right of asking the carrier to return the goods back or not to deliver goods to the buyer। मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। गुड्स जो है वो सेलर के गोडाउन से निकल गए, ठीक है ना, मतलब ट्रक में लोड हो गए और सेलर का जो एजेंट है या जो कैरियर है, जो भी ट्रांसपोर्ट वाला बंदा है, वो ट्रक में उसने गुड्स को लोड कर दिया और वो जो ट्रक है वो भी निकल चुका है, वो भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं है। मतलब द ट्रक हैवंट रीच टू द बायर, इट इज इन बिटवीन द एनी, इट इज इन बिटवीन एट एनी प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर। इट मीन्स द गुड्स आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब इट इज ऑन द वे, अभी तक ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं है। एंड सडनली द सेलर गेट द न्यूज दैट द बायर बिकेम इंसॉल्वेंट। नाउ अंडरस्टैंड, गुड्स अभी तक पहुंचे नहीं है, सेलर के कंट्रोल में से गुड्स निकल गए, उसके गोडाउन में से निकल गए, लेकिन अभी तक बायर तक गुड्स पहुंचे नहीं है और सेलर को ऐसा न्यूज मिल गए कि जो बायर है ही बिकेम इंसॉल्वेंट। सो इन दैट केस सेलर हैज राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। वो रास्ते में ही जो भी अपना ट्रांसपोर्टर वाला है या उसको फोन करके बोल सकता है कि भाई अभी तुम गुड्स को आगे मत ले जाना, काइंडली स्टॉप द गुड्स, काइंडली स्टॉप द ट्रक, उसको वहीं पर रखो अंटिल माय फर्दर ऑर्डर। क्लियर है ये? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। नाउ however the right of stoppage in transit is exercised only when following conditions are fulfilled। मतलब for that also there are several conditions, for that also there are several conditions। Number one, क्या कंडीशन है? सेलर मस्ट बी अनपेड। तो सेलर दोस्तों कैसा होना चाहिए? सेलर कैसा होना चाहिए? अनपेड। अनपेड मीन्स व्हाट? उसके पैसे या उसका पेमेंट है वो बाकी होना चाहिए। एम आई क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ही मस्ट हैव पार्टेड विथ द पोजेशन ऑफ गुड्स। मीन्स व्हाट? गुड्स का पोजेशन उससे चला गया होना चाहिए। पार्टेड मतलब पोजेशन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम सेलर। पोजेशन, जो गुड्स का पोजेशन है वो सेलर से सेपरेट हो चुका होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, द गुड्स आर इन ट्रांजिट, रास्ते में होने चाहिए। नंबर फोर, द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि आप गुड्स रास्ते में तभी रोक सकते हो जब गुड्स, जब बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, देन यू कैनॉट स्टॉप द गुड्स ऑन इन ट्रांजिट। आर यू, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पर समझना क्या है, यही समझना है कि in order to use this right, there is very important condition which you need to understand, and the condition is buyer must have become insolvent।
ये राइट सेलर तभी यूज कर सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो चुका हो। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है and he is not paying amount for some another reason, then he cannot seller cannot exercise this right। ठीक है, इसको अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर देना। एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, दैट्स फाइन, नॉट एन उसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। एग्जाम्पल, बी इज एट दिल्ली, ऑर्डर गुड्स टू ऑफ ए एट मुंबई, ए कंसाइन एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी। On arrival at Delhi, they are taken to B's warehouse and left there. B refused to take these goods and stop payment. The goods are in transit and unpaid seller can take them back। दोस्तों अब समझना क्या है, क्या है। बी कौन है? बी इज एट दिल्ली, ऑर्डर्स गुड ऑफ ए एट मुंबई। तो ऑर्डर कौन कर रहा है? बी। ठीक है, तो बी कौन होगा यहाँ पर? बी कौन होगा? तो ऑब्वियसली बी जो होगा वो बायर होगा और ए जो होगा वो सेलर होगा। बायर इज एट दिल्ली, सेलर इज एट मुंबई। ए कंसाइन फॉरवर्ड द गुड्स टू बी, मुंबई से उसने दिल्ली गुड्स भिजवाए। On arrival at Delhi, they are taken to B's warehouse and left there। ठीक है, जैसे वो दिल्ली में गुड्स आए, डायरेक्ट बी के वेयर हाउस में वहां उसको लेके गए। बी रिफ्यूजेस टू टेक दिस गुड्स एंड स्टॉप पेमेंट। बी ने क्या कहा कि आई डोंट वांट दिस गुड्स, मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस गुड्स एंड आई विल ऑल्सो नॉट मेक अ पेमेंट। ठीक है, मैं पेमेंट भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे गुड्स भी नहीं चाहिए, इसको लेके जाओ। Now the goods are in transit and unpaid seller can take them back। Now certain thought will came in your mind कि सर गुड्स तो बी के गोडाउन में चले गए हैं, तो आप हाउ कैन यू से इट इज इन ट्रांजिट? द रीजन कि बी ने उसकी डिलीवरी लेने से यहाँ पर मना कर दिया है। तो मना कर दिया है मतलब क्या है? तो अल्टीमेटली वो डेस्टिनेशन पे कब पहुंचे ऐसा बोला जाएगा जब इट इज एक्सेप्टेड बाय बी। बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स फाइनली सेल हो गए। बट बी ने तो क्या किया, वेयर हाउस में ही ना बोल दिया कि भाई मुझे गुड्स नहीं चाहिए और मुझे मैं पेमेंट भी नहीं करूंगा, इसको वापस लेके जाओ। इट मीन्स अगर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिए होते तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का रूल नहीं लगता, लेकिन बी ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया है। देन यू कैन से द गुड्स आर स्टॉपेज इन ट्रांजिट and unpaid seller can take their goods back with them। I hope the things are clear to you। Now third right is right of resale। Third right is right of resale। Now what is this? Unpaid seller can exercise the right to resell the goods under following condition। Condition number 1, where the goods are of perishable nature, and condition number 2, where he given notice to buyer of his intention to resell। So guys, understand, the seller will get this right in two conditions। पहली कंडीशन क्या है? वेर गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, मतलब गुड्स जो है वो पेरिशेबल होने चाहिए। इन सच ए केस द बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म ऑफ इंटेंशन ऑफ रीसेल। मतलब यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल नेचर मीन्स इट कैन बी वेजिटेबल, इट कैन बी फ्रूट्स, ऐसे गुड्स जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। And in this situation, buyer became insolvent। अब समझो, बायर दिल्ली में है, सेलर मुंबई में है, गुड्स अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में उसको रोक के रखा है। ध्यान से सुनना। अब ये गुड्स का क्या, ये गुड्स पेरिशेबल नेचर के है, मतलब अगर इसको ज्यादा दिन तक रोक के रखा तो ये गुड्स स्पॉइल हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और आपने सेलर ने उस गुड्स को रोक के क्यों रखा था? क्योंकि उसके ऐसे न्यूज मिले हैं कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब वो क्या करेगा? पेरिशेबल कमोडिटी है तो सबसे पहले वो डिसीजन तो यही लेगा ना कि उसका लॉस ना हो। तो ये क्या करेगा? लॉस ना हो इसीलिए
वो उसको डायरेक्टली बेच देगा, और जब ये उसको बेचेगा तो उसको बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. आई रिपीट, नो नीड टू गिव नोटिस टू बायर if the goods are of perishable nature. Am I clear? And second, where he gives notice to buyer of his intention to resell the goods and the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price. मतलब goods perishable nature के नहीं है, then buyer have to, sorry, seller have to give notice to buyer with before resale. ठीक है, वो उसको नोटिस देगा कि आई हैव गिव यू टाइम फॉर पेमेंट, stipulated time, and in that time also you haven't sent me the payment, so now I am forced to sell the resell the goods. ऐसा वो बायर को नोटिस देगा और उसके बाद ही वो गुड्स बेच सकता है. So I repeat once again, if the goods are a perishable commodity, seller is not required to give any notice to buyer before reselling the goods. And if goods are of normal commodity, normal quantity, or I can say नॉर्मल नेचर के है, मतलब पेरिशेबल नहीं है, इन दैट केस सेलर हैव टू गिव नोटिस टू बायर बिफोर रीसेल ऑफ द गुड्स. ओके, so I hope the things are clear till now. Let's move ahead. Okay, now coming to next part, right of unpaid seller against the buyer. गाइस, हमने ऑलरेडी राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स देख लिया है. अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर. एन अनपेड सेलर कैन एनफोर्स सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज अगेंस्ट द बायर पर्सनली. दिस राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर इज नोन एज सेलर्स रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. द राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली are called right in personam. It is very important, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है. क्या लिखा है? The right of seller against the buyer personally are known as right in personam, and in addition to his right against the goods. Fine. तो यहाँ पर right of unpaid seller against the buyer are known as right in personam. इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखना. इट कैन बी ए पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू और एग्जाम. इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है. ओके, सो सबसे पहला राइट, मतलब पहले केस में हमने देखा कि राइट सेलर को गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट मिलते हैं, और इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि सेलर को बायर के अगेंस्ट क्या राइट मिलते हैं. ओके, तो दो चीज आपको यहाँ पर समझ. नाउ first point is suit for price. Where property has passed to the buyer and he wrongfully neglect or refuse to pay for goods, the seller may sue him for the price of the goods. मतलब एक बार गुड्स बायर के पास चला गया and without any issue, without any problem, without any I can say excuse, buyer wrongfully neglecting, मतलब वो जानबूझ के गुड्स को रिजेक्ट करता है. एंड ही सेज कि आई डोंट वांट टू पे फॉर द गुड्स. लुक, यू आर आल्सो ऑर्डरिंग फ्रॉम Amazon, and sometime what happens, you are returning goods because you don't like the pattern. Now understand, अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है, जैसे कि आई कैन से साइज का प्रॉब्लम है, आपने कुछ साइज मंगाई थी और दूसरी साइज का निकला प्रोडक्ट, देन यू कैन रिटर्न. बट कलर आपने पहले से देखा था कि ब्लू है और ब्लू कलर ही आता है और फिर भी आप उसको भिजवाते हो, साइज का भी कोई इश्यू नहीं है, देन यू आर रॉन्ग. समझ में आ रहा है? अगर आपने ब्लू मंगवाया था और ब्लैक आया है तो आप उसको भिजवा सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो. सो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि व्हेन प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू बायर and he wrongfully neglect or refuses to pay the goods, the seller may sue him for the price of the goods. Fine. तो सेलर को क्या राइट मिलता है? सेलर बायर के ऊपर यहाँ पर केस करेगा.
Okay, don't worry, all these things are not applicable to Amazon, so don't worry. ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो किसके लिए है? दैट इज फॉर नॉर्मली ट्रेडिंग, ठीक है, जो गुड्स का उसका होता है वो. नाउ सेकंड पॉइंट, where property has not passed under contract of sale and price is payable on certain day irrespective of delivery and buyer wrongfully neglect or refuses to pay such price, seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and goods have not been appropriated to the contract. तो ये क्या है? what this point is saying? तो ये पॉइंट ऐसा है कि where property in first case property has passed, in second case property has not passed, and the price is payable on certain day irrespective of delivery. प्राइस ऑलरेडी पे हो चुकी है और या तो क्या है कि एक डेट डिसाइड कर लिया है कि इस दिन आपको डिलीवरी मिलेगी और उसी दिन आपको, सपोज गाइस आई कैन एक्सप्लेन यू कैश ऑन डिलीवरी. ये कैश ऑन डिलीवरी क्या है? मतलब जब गुड्स मिलेंगे तभी आप पे करोगे ना, उससे पहले तो आप पे नहीं करने वाले हो. दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि where property has not passed under the contract of sale and price is payable on certain day of delivery and buyer wrongfully neglect or refuse to pay such price, then also seller may sue him for the price. Okay, so both are different things. Approach is same but the things are different. Why? Here the property has passed and here the property has not passed. Otherwise the treatment is same in both the cases. Okay, now next point, that is sued for damages for non-acceptance, where the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay for the goods. The seller may sue him for damages for non-acceptance as regard to measure of damage section 73 apply. Fine. तो अगेन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है. ट्विस्ट तो नहीं कह सकता हूँ बट देर इज वन पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. वो पॉइंट क्या है कि बायर ने गुड्स को रिजेक्ट किया तो यहाँ पर बायर बच नहीं जाएगा कि देखो मैंने गुड्स तो लिए भी नहीं और मैं पैसे भी नहीं दूंगा. तो सेलर तो क्या करेगा, भाई तूने गुड्स लिए नहीं बट ऑर्डर तो तेरा ही था, अब तुझे गुड्स लेने ही पड़ेंगे. अगर तू अननेसेसरीली without any reason, without any defect in goods, you are refuses to accept the goods and pay for the goods, then you have to pay me damages. Damages मतलब जो मुझे लॉस हुआ है वो तुझे पे करना पड़ेगा. You have to pay me compensation. Is it clear? Is it fine? तो ये उसको सेकंड राइट मिलता है. किसको दोस्तों? तो ये राइट मिलता है सेलर को. इन फर्स्ट केस अंडरस्टैंड, इन फर्स्ट केस उसको प्राइस का मतलब सू हिम फॉर प्राइस, ठीक है, गुड्स की प्राइस जो है उसके लिए वो केस करेगा. और डैमेज इसका मतलब होता है कंपनसेशन. इट इज अपार्ट फ्रॉम प्राइस. ठीक है, पहले केस में वो प्राइस के लिए केस करेगा, दूसरे केस में वो डैमेज के लिए केस करेगा. डैमेज मतलब कंपनसेशन. थर्ड पॉइंट, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. रेप्यूडिएशन मतलब विड्रॉवल, विड्रॉवल और कैंसलेशन. Repudiation of contract before due date, where the buyer repudiates the contract before date of delivery, the seller treats the contract as rescinded and sue damages for the breach. This is known as rule of anticipatory breach of contract. Anticipatory breach of contract आपको already लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका होगा. मैं आपको समझाता हूँ कि जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी, जिस दिन डिलीवरी डिसाइड की थी, उस दिन से पहले, ठीक है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन से पहले बायर रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है. ठीक है ना. तो सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंट, मतलब सेलर ऐसा मानेगा कि बायर ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है और विदाउट एनी रीजन before due date, before date of delivery, without any valid reason,
without any valid reason, if buyer is breaking the contract, then seller is liable for damages. Seller is liable for damages. Fine. So I hope the point is clear. Moving towards our next point, suit for interest. Interest मतलब क्या? यहाँ पर interest means it is one kind of penalty. ठीक है, अब ये क्या है? We will understand. Don't worry. Where there is specific agreement between seller and buyer as to interest on price of goods from date on which payment becomes due. Seller may recover interest from the buyer. If, however, there is no specific agreement, the seller may charge interest on price when it becomes due from such day as he may notify to the buyer. समझाता हूँ, डोंट वरी. जब कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों ने मिलके, बायर और सेलर ने, तो उसमें ऐसा डिसाइड हुआ था कि अगर any of the party is failed to make a payment, then from that day certain amount of interest will be paid by other party. जो बंदा पेमेंट में डिले कर रहा है उसको, अगर वो ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करता है तो उसको जितना डिले होता है, फॉर दैट पर डे ही हैव टू पे इंटरेस्ट टू अदर पार्टी. ऐसा डिसाइड हुआ था कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में. और यहाँ पर इफ बायर इज नॉट मेकिंग पेमेंट and seller became unpaid seller, in that case seller can sue for interest. Sue for interest मतलब वो इंटरेस्ट के लिए भी बायर के ऊपर केस कर सकता है. ओके, क्लियर है यहाँ तक? फाइन. सो this was about right of unpaid seller. Now let us understand the difference between right of lien and right of stoppage in transit. चलो, दोनों में डिफरेंस क्या है? Guys, it is very interesting and important topic, so all of you pay attention here. Essence of right of lien is to retain possession, whereas right of stoppage in transit is to right to regain possession. देखो, लियन में आप पोजीशन रिटेन करना चाहते हो, ट्रांजिट में आप पोजीशन रीगेन करना चाहते हो. रीगेन मतलब क्या? पोजीशन आपके हाथ से चला गया. पोजीशन कहाँ गया है? ट्रक ड्राइवर के पास या इंटरमीडियरी के पास. राइट ऑफ लियन में क्या है कि ऑलरेडी यू हैव राइट, यू हैव कंट्रोल ओवर गुड्स. गुड्स अभी भी आपके गोडाउन में पड़े हैं, आपकी शॉप में पड़े हैं. तो यहाँ पर आप लियन क्यों करते हो? बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल दैट गुड्स. बट इफ आई टॉक अबाउट stoppage in transit, the goods are already gone beyond your control, and that's why you want to regain that control. आप उस goods का control फिर से पाना चाहते हो. So this is the difference between stoppage in transit and lien. Point number 2, seller should be in possession of goods under lien, while in stoppage in transit seller should have parted with the possession. ठीक है, तो लियन में क्या है? सेलर शुड बी इन पोजीशन. Same point is there. There is not much difference in first point and second point. Again I repeating, seller should be in possession. लियन वो तभी कर सकता है जब गुड्स उसके पोजीशन में हो. किसके? सेलर के. और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में तो सेलर के पास से गुड्स चला गया. ठीक है ना? किसके पास होगा? तो वो किसी कैरियर के पास होगा, किसी इंटरमीडिएट के पास होगा. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट रीच टू बायर. अभी तक वो बायर के पास पहुंचा नहीं है, और अगर पहुंचा भी है तो बायर ने उसका पोजीशन लिया नहीं. ओके. थर्ड पॉइंट, राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, बट इट इज नॉट अ केस विथ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. यस, ठीक है. राइट ऑफ लियन, बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो भी राइट ऑफ लियन आप कर सकते हो. मतलब क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू. गुड्स आपके पास गोडाउन में है एंड यू आर अनपेड सेलर, और बायर इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन आपको पेमेंट करने से मना कर रहा है. तो आप क्या करोगे?
then what you will do? You will do nothing, but you will exercise your right of lien. आप बोलोगे कि भाई मुझे पैसा तो बाद में मैं आपको पूछ दूंगा, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तभी कर सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तभी यूज कर सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट होता है। एंड फोर्थ, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन राइट ऑफ लियन एंड। यस, ठीक है ना। राइट ऑफ लियन जैसे खत्म होता है वैसे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है। तो वी कैन से in order to get right of stoppage in transit, you must end or you must withdraw or you must waive your right of lien. Second one will never start before first one will end. ठीक है ना। फर्स्ट पहला जो राइट एंड होगा लियन वाला, तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होगा। पहला खत्म होने से पहले दूसरा स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये याद रखना। बोथ आर नॉट साइमल्टेनियस, ये याद रखना। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू remember. Then कुछ बायर को भी रेमेडीज मिलती है। There are certain remedies which buyer will also get. तो वो क्या है? Damages for non-delivery. Where seller wrongfully neglect or refuse to deliver the goods to buyer, buyer may sue the seller for damages for non-delivery. यहाँ अब पहले केस में हमने क्या देखा था? बायर wrongfully neglect करता है, लेकिन अगर सेलर भी जानबूझ के आपको डिलीवर नहीं कर रहा है तो buyer have that right to sue seller for delivery of goods. Then suit for specific performance means what? Where the seller commit of breach of contract of sale, the buyer can appeal to court for specific performance. The court can order for specific performance only when goods are ascertained or specific, damages are insufficient and goods are unique and costly. मतलब क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर ने अपना पार्ट परफॉर्म करने से, जो स्पेसिफिक परफॉर्म करना था वो करने से उसने मना कर दिया, तो बायर क्या करेगा भाई? बायर विल गो टू कोर्ट एंड ही विल सू द सेलर। लेकिन कोर्ट यहाँ पर तीन चीजें देखेगा। क्या देखता है? द गुड्स आर एसर्टेन और स्पेसिफिक, द डैमेजेस मस्ट बी इनसफिशिएंट एंड द गुड्स मस्ट बी यूनिक एंड कॉस्टली। ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो ही बायर कैन गेट द राइट टू sue for specific performance. Third point, suit for breach of warranty. मतलब क्या है? Where the breach of warranty on part of seller or where the buyer elect to treat breach of condition as breach of warranty, the buyer is not entitled to reject the goods only on basis of such breach of warranty, but he may set up against seller the breach of warranty in diminution और sue the seller for damage for breach of warranty. थोड़ा समझने में टेक्निकल है, बट डोंट वरी। वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन पार्ट ऑफ सेलर, देखो सेलर ने किस चीज का ब्रीच किया है, क्या तोड़ा है? वारंटी, ठीक है ना। एंड बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी। या तो सेलर ने वारंटी तोड़ी है या तो फिर बायर ने कंडीशन को, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया है। द बायर इज नॉट ओनली एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझाता हूँ। गाइस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू इन टॉपिक ऑफ कंडीशन एंड वारंटी कि कंडीशन इज फर्स्ट फ्लोर, सॉरी कंडीशन इज ग्राउंड फ्लोर एंड वारंटी इज फर्स्ट फ्लोर। अगर आप वारंटी टूटती है तो कंडीशन टूटेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आई रिपीट, if in case warranty is been broken, it doesn't mean condition got broken. Breach of warranty is not equal to breach of condition, but breach of condition is automatically considered as breach of warranty.
तो यहाँ पर अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी किया है, मतलब उसने वारंटी तोड़ी है, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, द बायर कैन sue सेलर फॉर damages ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली। ठीक है ना, वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है ओनली फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस नहीं कर सकता है। सो दैट इज फाइन, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट इज suit for damages for repudiation of contract by seller before due date. Buyer may treat the contract as subsisting and wait for the date of delivery, or he may treat the contract as repudiation sue for damages for breach. अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट डेट थी 15 अगस्त, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, और 12 अगस्त को सेलर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। नाउ अंडरस्टैंड, delivery date was 15 August and on 12th August seller is refusing to deliver। सेलर ऐसा फोन करके कहता है कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा। ना बायर जो है, बायर के पास यहाँ पर कुछ राइट है। क्या राइट है कि या तो वो वेट कर सकता है टिल 15 अगस्त, कि चलो एक बार मैं वेट कर लेता हूँ, अगर 15 अगस्त तक इसका दिमाग चेंज हो जाता है तो अच्छा है, तो मुझे डिलीवरी मिल जाएगी और मुझे केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वेट करने के बाद भी अगर सेलर गुड्स डिलीवर नहीं करता है, देन ही विल फाइल अ केस अगेंस्ट सेलर। एंड लास्ट इज शूट फॉर इंटरेस्ट। शूट फॉर इंटरेस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट की पहले से बात हुई थी, अगर buyer is entitled to recover interest or special damage to recover money paid whereas consideration for payment of it has failed। बायर ने कुछ एडवांस दिया था सेलर को, सेलर ने गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया, तो बायर को यहाँ पर एडवांस भी मिलना चाहिए, और अगर वो लेट मिलता है तो वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ओके, सो ऑल these थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक इज ऑक्शन सेल। Now what is auction sale? Auction sale is mode of selling property by inviting bids publicly and property is sold to highest bidder. Okay, an auctioneer is an agent governed by law of agency. When he calls, he is only the agent of seller. He may, however, sell his own property as principal and need not disclose the fact that he is so selling। मतलब ऑक्शन सेल, यू ऑल आर अवेयर कि इसमें क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए यू आर इनवाइटिंग बिड्स। ठीक है, आई थिंक आपने मूवीज में भी देखा होगा, 5 लाख, 1,000 एक बार, 5 लाख 2 बार। इन दैट वेलकम मूवी मजनू भाई की पेंटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप सबने देखा ही होगा। सो ऑक्शनर इज एन एजेंट गवर्न बाय लॉ ऑफ एजेंसी। वो गवर्नमेंट रिक्रूटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉ ऑफ एजेंसी के अंडर रिक्रूट किया हुआ एजेंट होता है, एंड ही हैव सर्टेन राइट्स एज वेल। नाउ you need to understand some characteristics of auction sale। First is where the goods are sold in lot। So where the goods are put for sale in lot, each lot is prima facie deemed to be subject matter of separate contract of sale। एक एग्जांपल लेते हैं, suppose there is one big consignment of, I can say, shoes। एक शूज का पूरा कंसाइनमेंट आया है, ठीक है, और उस कंसाइनमेंट में सेपरेट सेपरेट लॉट है, और हर एक साइज के शूज के सेपरेट लॉट है। जैसे कि 6 नंबर के शूज है तो उसका पूरा एक लॉट है, फिर 7 नंबर के शूज का पूरा एक लॉट है, 1000 शूज का, 6 नंबर की साइज के शूज का 1000 शूज का एक लॉट, फिर 7 नंबर की साइज के 1000 शूज का एक लॉट। ठीक है, इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हर एक बार फॉर ईच लॉट वी विल कंसिडर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये आपको ऑप्शन में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, completion of contract of sale। Sale is complete when auctioneer announce its completion by fall of hammer
और इन एनी कस्टमरी मैनर। एक बार जो हैमर 3 बार उसने मतलब क्या कहते हैं स्ट्राइक कर दी टेबल के ऊपर या किसी के भी ऊपर, ठीक है, 3 बार उसने ऐसा वो हैमर को हम जैसे कि 5 लाख 1 5 लाख 2 5 लाख 3 ऐसा उसने हैमरिंग कर दिया टेबल के ऊपर, तो वो बिड फाइनल हो गई और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाता है। राइट ऑफ बिड में बी रिजर्व, राइट ऑफ बिड में बी रिजर्व एक्सप्रेसिवली बाय or on behalf of seller, and where such right is expressly reserved but not the seller or any one person on his behalf may bid at the auction। तो यहाँ पर गाइस सेलर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ऑक्शन में, लेकिन सेलर जो अपना राइट है किसी प्रोडक्ट को बेचना या नहीं वो अपने पास जरूर रख सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स तो उसकी ही है। फाइन। नेक्स्ट, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, मतलब क्या है, वेयर द सेल is not notified to be subject to right of seller to bid, it shall not be lawful for seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any person representing him। Any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer। बहुत ही सिंपल रूल है ये, ठीक है। क्या रूल है कि सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू राइट ऑफ द सेलर टू बिड, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सेलर को पहले से ही कोई राइट नहीं दिया गया है और सेलर यहाँ पर कोई अपना एजेंट या कोई ऐसे इंसान जो उसका नोन है उसके थ्रू बिडिंग करवाता है, तो बायर कैन ट्रीट दिस डील एज फ्रॉडुलेंट। मतलब सेलर को पहले से राइट नहीं था और फिर भी वो अपने इंसान के थ्रू बिडिंग करवाता है, देन it will be not treated as a normal condition। Reserved price, sale may be notified to be subject to reserve or upset price। जो जो बेस प्राइस होती है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। एंड प्रिटेंडेड बिडिंग, मतलब if the seller make use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of buyer। yes, जानबूझ के वो रेट बढ़ाने का काम करता है, 5 लाख 5 लाख 6,000 5 लाख 8,000 समथिंग समथिंग लाइक दैट, जानबूझ के वो क्या कर रहा है प्रिटेंड कर रहा है, बिडिंग प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाहर को पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी voidable at the option of buyer। okay, so this was the end of our unit, that is sale of goods act। fine। so guys, uh, from next if you have any doubt any query, I have already created a group, you can share your doubt and query in that group, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, फाइन, टिल दैट, बाय।